So welcome to dear students. Today we have taken another topic of the flow through pipe, and that topic is very important. We will discuss about the siphon in the flow through pipe. Siphon क्या है? First we will try to understand the siphon and why we will use, where we will use the siphon. So actually क्या है? What is there? Suppose we are having two reservoirs. They are at different elevations and they are being separated by some hills or you can say high level ground, and we want to carry the water from the higher elevation of the reservoir to the lower elevation of the reservoir. हमें क्या करना है कि पानी को हम क्या चाहते हैं कि दो रेजरवायर्स हैं. सपोज एक रेजरवायर हमारा हायर लेवल के ऊपर है और दूसरा रेजरवायर हमारा लोअर लेवल के ऊपर है, और दोनों रेजरवायर्स दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय some hills are like this. So in that case we cannot put the horizontal pipe there. So definitely, because we have to cross the higher elevation, for that we use the long bent pipe. हम क्या यूज करते हैं? लॉन्ग बेंट पाइप यूज करते हैं. दैट लॉन्ग बेंट पाइप, दैट इज कॉल्ड द साइफन. यू अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड द साइफन. So these two reservoirs, you can say that is being separated by some hill or you can say high level ground, and we want to carry the water from higher elevation of the reservoir. एक टैंक से दूसरे टैंक में हमें क्या करना है? We have to carry the water. So in that case we use the long bent pipe and we call the siphon. तो साइफन का डेफिनेशन क्या है? What is the definition of the siphon? Siphon is a long bent pipe which is used to carry the water or transfer the water from the reservoir at the higher elevation to the another reservoir which is at the lower elevation, and these two reservoirs are being separated by high ridge, hill, or you can say high level ground. So this is the definition. तो डेफिनेशन हम इसकी पहले लिखते हैं. साइफन क्या है? साइफन is a long bent pipe, to transfer the liquid or water, जो भी है, transfer the liquid लिख लो आप, to transfer the liquid from the reservoir at higher elevation to another reservoir at lower elevations, and these reservoirs, you can say, and these reservoirs are being separated by the हिल और रिज कह सकते हैं, कोई रिज होगा, और हाई लेवल ग्राउंड. यू अंडरस्टैंड?
high level ground. So this is the definition of the reservoir. You understand? Sorry, this is the definition of the siphon. तो ये साइफन का डेफिनेशन था, क्योंकि क्या है ये, जहां से आप देखिए, दिस इज योर टैंक ए, और यू कैन से द रेजरवायर ए विच इज एट हायर एलिवेशन, एंड दिस इज द टैंक बी विच इज एट लोअर एलिवेशन. और इनके बीच में ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि हाई लेवल ग्राउंड है, कोई रिज है, कोई हिल है. सो दीज टू रेजरवायर्स आर सेपरेटेड बाय दिस. नाउ वी हैव टू कैरी द वाटर from the reservoir A, which is at higher elevation, to the other reservoir, which is at the lower elevation. But the condition is that these are being separated by the hill or the ridge. So we cannot use the direct pipe like this. हम direct pipe तो यहाँ पे use नहीं कर सकते to carry the water from one reservoir to the other reservoir. So what we will do? We use the लॉन्ग बेंट पाइप लाइक दिस. ये आपका हिल है, तो नेचुरली ये पाइप जो है ये हिल के इस तरीके से ऊपर से जाएगी. इट विल गो लाइक दिस एंड देन इट विल कम डाउन हियर. यू अंडरस्टैंड? तो जहां से इस तरीके से ऊपर जाएगा एंड देन इट विल कम डाउन एंड इट इज कनेक्टेड टू द अनदर टैंक बी. तो ये टैंक बी आपका जो एम्प्टी टैंक था, टैंक बी, वो भी आपका फिल होना शुरू हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज यूज्ड फॉर कैरिंग द वाटर फ्रॉम one tank to another tank when these two tanks are separated by the hill or any high spot, high ground level. कोई भी बीच में होगा तो उससे आपका ये सेपरेट होगा. यू अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर आ जाएंगे. द हाइएस्ट पॉइंट, ये देखिए, दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट. ये आपका ये हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द लॉन्ग बेंट पाइप. जो लॉन्ग बेंट पाइप का जो हाइएस्ट पॉइंट है सी, आई विल से, ये जो हाइएस्ट पॉइंट होगा, ये लिख देते हैं हम. सो हाइएस्ट पॉइंट, दैट इज द हाइएस्ट पॉइंट सी इन लॉन्ग बेंट पाइप. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्ट कहते हैं, राइट? सो हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द क्रस्ट, और इसको हम समिट, राइट? क्रस्ट भी कहते हैं और समिट, क्रस्ट और समिट. तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका क्रस्ट और समिट. यू अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड द समिट और क्रस्ट. अब ये जो लेफ्ट पोर्शन है, हाईएस्ट पॉइंट से जो लेफ्ट साइड की तरफ जो पाइप का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द इनलेट लिम्ब. इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज योर इनलेट लिम्ब. This is inlet limb. You understand? Inlet limb क्या है? This is your the highest point summit. Summit के जो left side bent pipe का जो portion होगा, that is called a inlet limb. और जो इसके right side जो portion होगा, इसको हम कहते हैं right limb. इसको क्या बोलते हैं हम? Right limb. This is called the right limb. You understand? Inlet limb and the right limb. So this is about the construction. Now, अब इसका वर्किंग क्या है? Let us discuss the working. कंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया. So वर्किंग क्या है इसका? So working of the siphon,
So working of the siphon, that depends upon the height of the summit and the length of the inlet limb. You understand? तो वर्किंग जो इसका है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? That depends upon the height of summit and length of inlet limb. ये डिपेंड करेगा कि समिट का हाइट कितना होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, और इनलेट लिम्ब की जो लेंथ है वो हमें क्या लेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए, और यू कैन से इट्स लेंथ शुड बी लेस और इट्स लेंथ शुड बी मोर. Working of this, that depends upon the height of the summit and the inlet of the limb. You understand? So that depends upon this. Now yes, understands why we are saying that the working of the, why we are saying this thing. ये इसके ऊपर क्यों है क्वेश्चन मार्क्स कहता हूं मैं. Why we are saying that the working of the siphon, that depends upon the height of the summit and length of the inlet limb. To understand this, first we have already discussed, or first we know that the phenomena cavitation. हम एक phenomena जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमने पढ़ा हुआ है कि कैविटेशन क्या है. व्हाट इज द कैविटेशन? सो कैविटेशन क्या है? व्हाट इज कैविटेशन? और यू कैन से दैट हाउ द कैविटेशन अकर्स. कैविटेशन कैसे अकर होती है? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस फिनोमेना, बिकॉज वी आर सेइंग इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द समिट एंड द लेंथ ऑफ द इनलेट लिम्ब. तो ये क्यों हम कहते हैं, तो इसको समझने के लिए फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कैविटेशन. अब देखिए, द फ्लोइंग फ्लूइड, द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, if that fluid is having the vapor pressure, and you know at the vapor pressure the flowing fluid that converts into vapors, and then there is a formation of the bubbles. You understand? Flowing fluid that converts into vapors, and there is the formation of the bubbles, and when the bubble breaks, there is the formation of the cavitation. You understand? जो आपका फ्लूइड है, फ्लो करता है, उसका प्रेशर कभी भी वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए. You understand? So first point to understand that the fluid which is flowing through this, its pressure should not less than the vapor pressure. If the pressure of the flowing fluid is less than the vapor pressure, then there will be the formation of the cavitation. You understand? Cavitation का formation होगा. Why? Because at vapor pressure, flowing fluid that converts into vapors, and they form the vapor bubbles, and when the bubble breaks, then there is the formation of the cavitation. तो फर्स्ट पॉइंट है, हमें ये देखना है कि हमारा जो वेपर्स है, हमारा जो फ्लोइंग फ्लूइड है, उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड दिस? और अगर उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तो क्या होगा? कैविटेशन का फॉर्मेशन होगा. तो हमें फ्लूइड को इससे इधर से जहां तक हमें क्या करना है, फ्लो करवाना है. एंड इफ देयर इज ए वेपर प्रेशर at any point of the bent pipe, so what happens? There will be the formation of the cavitations there.
and the pipe will choke. You understand? The fluid will not flow. अब my point is, मैंने कहा था height of the summit. ये जो समिट की पाइप हाइट है, मीन्स हमें पाइप को जब ये इस तरीके से ऊपर लेना है तो कितनी पाइप की हाइट जो होनी चाहिए, समिट की हाइट. समिट की हाइट हम कहाँ से मेजर करते हैं? ये आपका वाटर लेवल है, ये इधर से ले, ये है, तो ये आपका वाटर लेवल, जो टैंक का वाटर लेवल है, कौन सा टैंक का? हायर एलिवेशन टैंक का जो वाटर लेवल है, तो ये आपका हो गया एच सी, राइट. दिस इज द हाइट ऑफ द समिट फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द टैंक ए टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द बेंट पाइप. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, जो वेपर प्रेशर है, दिस इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यू नो, ये आपका नेगेटिव प्रेशर होता है. एज द फ्लूइड इज कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे फ्लूइड इधर से ऊपर मूव करना, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा? द प्रेशर विल डिक्रीज. यू अंडरस्टैंड? प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. और हमें हाइट इस तरीके से रखना है इसका कि इसका जो वेपर प्रेशर है, दैट जो इसका प्रेशर है फ्लोइंग फ्लूइड का, दैट शुड नॉट बी लेस देन द वेपर प्रेशर. यू अंडरस्टैंड? तो वेपर प्रेशर कहां पे होगा? सपोज इफ वी विल सी दिस लॉन्ग बेंट ऑफ पाइप, प्रेशर तो ये रिड्यूस करता जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर इफ देयर इज एनी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वेपर प्रेशर, वेयर इट विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड? जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाइप होगा, वहां पे वी आर हैविंग द चांसेस टू फॉर्म द वेपर प्रेशर, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाइप इज समिट. यू अंडरस्टैंड? सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जहां पे आपका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? जहां पे आपका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट हो सकता है. सो इट मीन्स दैट द मिनिमम प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर आप कह सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर एट समिट दैट इज, मैं अगर इसको मैक्सिमम पीएस में डोनेट करता हूं, प्रेशर एट समिट, तो पीएस आपका क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन पीवी, राइट? दैट शुड बी पीएस, दैट शुड बी ग्रेटर देन पीवी. यू अंडरस्टैंड? तो प्रेशर आपका क्या होना चाहिए? पीएस, प्रेशर एट समिट, दैट शुड बी ग्रेटर देन पीवी, वेयर पीवी इज द वेपर प्रेशर. तो समिट का प्रेशर हमारा, समिट में जो प्रेशर होगा वो हमारा वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए. बाय बिकॉज, इसलिए ज्यादा होना चाहिए, देयर शुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ द कैविटेशंस देयर. यू अंडरस्टैंड? अब यू नो द वेपर प्रेशर. अगर वेपर प्रेशर की बात करें हम, देखिए पीवी ये होता है 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. अगर वाटर कॉलम के हिसाब से वी हैव टू मेजर, तो दैट शुड बी 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. यू अंडरस्टैंड? एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? ये जो आपका टैंक है, इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं लिखता हूं पी एटम, वाटर कॉलम के केस में ही लिख लीजिए आप, राइट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? दैट इज 10.3 मीटर ऑफ हाइट ऑफ द वाटर और वाटर कॉलम, राइट?
यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है कि एट दिस पॉइंट दिस इज अ फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, तो जहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है आपका दे होगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। यू अंडरस्टैंड? और मैं कहता हूं कि वेपर प्रेशर आपका कितना है, वेपर प्रेशर आपका कितना है 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जहां पे आपका प्रेशर था 10.3, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर आपका रिड्यूस होता जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो एट द पॉइंट सी आपका प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर आपका 2.7 अगर होता है तो देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटेशन हियर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। मींस हमें 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर जहां पे नहीं चाहिए, इससे लेस चाहिए। अगर ये 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम जहां पे प्रेशर होता है एट पॉइंट सी, सो देन व्हाट हैपेंस, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटेशन which we don't require. You understand? तो इसका मतलब है मैं हाइट जो है इसकी इस तरीके से डिजाइन करनी है कि हमारा जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वहां पे 2.7 मीटर से क्या होना चाहिए, 2.7 मीटर से हमारा प्रेशर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 2.7 या 2.7 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2.7 मीटर या 2.7 मीटर से कम होता है तो वहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द कैविटेशंस फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये होगा जो हमारी HS है, ये जो आपकी हाइट है दिस वन, जहां पे 10.3 था और जहां पे 2.7 या 2.7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? 2.7 से अगर कम होता तो वहां पे क्या होगा, कैविटेशंस फॉर्म होगी। तो HS को अगर मैं ऐसे लिखूं, जहां पे P एटम कितना था, ऐसे लिखूं P एटमॉस्फेरिक माइनस 2.7 मीन्स PV, राइट? तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 10.7 माइनस 2.7। यू अंडरस्टैंड? 10.3 माइनस 2.7, तो हाइट आपकी आई यहां पे, दैट शुड बी 7.6 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप 7.6 मीटर हाइट रखते हैं या 7.6 मीटर से कम की हाइट रखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आपका मिनिमम प्रेशर होगा। ये जो अगर इफ वी विल पूरी लॉन्ग बेंट पाइप को देखें, वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम, वेयर वी विल गेट द मिनिमम प्रेशर, we will get the minimum pressure at the highest point of the siphon, and the highest point of the siphon that is at the summit. You understand? तो समिट के ऊपर हमारे चांसेस हैं कि हमारा वेपर प्रेशर एग्जिस्ट हो सकता है, और अगर उसकी हमने हाइट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया तो वहां पे वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो हमें हाइट जो समिट की रखनी है वो कितनी रखनी चाहिए, 7.6 मीटर। Maximum height that should be 7.6 meter or less than 7.6 meter. If the height of the summit 7.6 meter or less than 7.6 meter होगा, so there will be no chances of formation of the cavitation here. Point समझ आ गया आपको? This is the one thing to design in the siphon. Siphon को डिजाइन करते वक्त हमें ये देखना है कि हाइट इसका कितना होना चाहिए। यही मैंने पॉइंट लिखा था, वर्किंग दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द समिट, राइट? तो हाइट ऑफ द समिट के ऊपर इसका वर्किंग डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द समिट
height of summit is equal to 7.6 मीटर or less. अगर इससे ऊपर हाइट होगा तो क्या होगा, वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड. और जब वेपर प्रेशर क्रिएट होगा देन देयर विल बी द चोकिंग ऑफ द फ्लूइड फ्लो. यू अंडरस्टैंड. देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द cavitations, and when the bubble breaks there will be a choking in the pipe and the fluid doesn't flow in the siphon or the pipe. You understand. तो फर्स्ट तो हमने ये देख लिया कि हाइट कितना होना चाहिए. दैट शुड बी 7.6 मीटर. ये पॉइंट समझ आया. आई विल अगेन रिपीट इट. वर्किंग था. वर्किंग दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द समिट. पहले हम हाइट ऑफ द समिट की बात करेंगे. यू अंडरस्टैंड. सो एज आई टोल्ड यू, एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक the atmospheric pressure, if I will calculate, if I will measure in terms of height of the water column, that is 10.3 meter, right, in terms of the water column. You understand. So as we know, as we keep on going towards the higher elevation, the pressure keep on decreasing. So the water that is moving from here and it is going towards the higher elevations like this. So it means the pressure of the water that keeps on decreasing, When it will reach at this point, because the summit is the highest point of the siphon, so at this point the pressure is minimum. You understand. But pressure कितना मिनिमम होना चाहिए, या किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना मिनिमम होना चाहिए, that should not be less than the vapor pressure. Why it should not be less than the vapor pressure? Because if it is less than the vapor pressure, there will be the formation of the cavitation. Vapors, they will convert into bubbles, and bubbles will break down and they will choke the pipe. So our main objective, that the pressure wherever it is minimum, but here the pressure is minimum at the summit. So pressure at the summit, that should not be less than the vapor pressure. You understand. तो वेपर प्रेशर आपका, that should not be less than the vapor pressure. और प्रेशर आपका डिक्रीज कैसे होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इसकी हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं. ये हाइट के ऊपर जाता जाएगा पानी, एलिवेशन के ऊपर वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू डिजाइन द हाइट ऑफ द साइफन. कि जो साइफन की जो हाइट है इसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड दैट. जिसको हम सबमिट करते हैं उसको हम डिजाइन करना पड़ेगा कि इसको हम कितना हाइट रखें. अब मैथमेटिकली हाउ वी विल कैलकुलेट, जस्ट अंडरस्टैंड. वेपर प्रेशर दैट यू नो, दैट इज द 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 10.3 मीटर ऑफ द वाटर कॉलम. सो इट मींस दैट वेपर प्रेशर दैट इज लेस देन दिस. तो वेपर प्रेशर इससे कम है. यू अंडरस्टैंड. और जैसे जैसे ये प्रेशर ऊपर जाता जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका इसका प्रेशर जो है वो नेगेटिव साइड जाता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. तभी तो इधर से फ्लो होगा. क्या होगा, सकिंग होगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड. जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर टैंक का था 10.3 मीटर, और जब ये पाइप इधर से ऊपर जाएगी तो प्रेशर ये रिड्यूस होता जाएगा, 10.3 से रिड्यूस होता जाएगा. यू अंडरस्टैंड. और पानी हमारा साइफन में फ्लो करता जाएगा. यू अंडरस्टैंड. बट अगर ये वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इसका जो मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर, तो आपका फ्लो जो है पानी का रुक जाएगा. यू अंडरस्टैंड. तो इसके लिए हमें हाइट को डिजाइन करना है. तो हाइट को डिजाइन करने के लिए अब देखिए मैथमेटिकल, ये है आपका 10.3 mm और वेपर प्रेशर आपका है 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. यू अंडरस्टैंड. तो हाईएस्ट पॉइंट हम कैसे लिखा लेंगे, दैट इज एच एस और एच सी. एच सी रखा है तो एच सी रख लीजिए इसे, एच सी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम माइनस 2.7.
2.7 क्या है? दैट इज द वेपर प्रेशर। तो जहां से आपको 7.6 मीटर कॉलम मिलेगा, जो कि आपको शो करेगा कि इस तक या इससे लेस अगर आप हाइट रखते हैं इसका, तो क्या होगा? आपका वाटर प्रेशर विल नॉट क्रिएट हेयर, वाटर प्रेशर विल नॉट जनरेट हेयर। तो इसका हाइट का डिजाइन किया, दैट शुड बी इक्वल और लेस देन 7.6 मीटर। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका हाइट ऑफ द समिट, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी, सेकंड मैंने लिखा था लेंथ ऑफ द इनलेट लिम्ब। तो आइए ये समिट, तो समिट का अपने अच्छा, तो हाइट ऑफ द समिट, height of the summit from the free surface of the water tank, that should be equal to 7.6 meter or less than 7.6 meter that we have seen. अब लेंथ ऑफ द लिम्ब, तो लेंथ ऑफ द लिम्ब कितना होना चाहिए? यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, जहां से देखिए, दिस इज द इनलेट लिम्ब, because the working that depends upon the height of the summit that we have discussed and the inlet limb. You understand? तो inlet limb जहां से देखिए आप, this is your inlet limb, that is the summit का जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो लिम्ब होगा, that is called the inlet limb. If its length is more, अगर इसकी हम ज्यादा लेंथ रखेंगे, try to understand, तो जहां पे क्या होंगे? फ्रिक्शन लॉसेस आपके क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यू अंडरस्टैंड? फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होंगे, और फ्रिक्शन लॉसेस अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर हेड लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? बट वी डोंट वांट टू डिक्रीज द प्रेशर एट मच। अगर हम इसकी लेंथ को ज्यादा रखेंगे तो प्रेशर हेड लॉस, एक तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा एज वी कीप ऑन मूविंग अपवर्ड, एंड सेकंड, अगर its length is higher, more you can say, so its pressure head, the pressure loss is more also. You understand? तो हम प्रेशर को ज्यादा डिक्रीज नहीं करना चाहते. We don't want to decrease the pressure anymore. You understand? So what, for that purpose, what we will do, we will not increase the length of the left limb. हम लेफ्ट लिम्ब की लेंथ को इंक्रीज नहीं करेंगे. वाई वी विल नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेफ्ट लिम्ब? बिकॉज देयर विल बी मोर फ्रिक्शन लॉसेस. यू अंडरस्टैंड? सो फ्रिक्शन लॉसेस मोर मीन्स आपका प्रेशर लॉस ज्यादा होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है, जो मैंने लिखा था, लेंथ ऑफ द इनलेट लिम्ब, द लेंथ ऑफ द इनलेट लिम्ब दैट शुड नॉट बी मोर, that should be within the parameter, that should be decreased. हमारी इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी लेंथ लेफ्ट लिंक की कम होनी चाहिए, so that हमारे जो प्रेशर, जो हमारा प्रेशर लॉसेस हैं वो लेस हो. यू अंडरस्टैंड? राइट लिम्ब की आप जितनी मर्जी लेंथ रखें, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज द वाटर इज गोइंग डाउन टूवर्ड्स द ग्रेविटी, बट हियर the water is rising up, and that is only possible when there is a pressure difference here. You understand? But pressure difference भी कितना होना चाहिए? That should not be less than 2.7 meter of water column. अगर वो होगा तो वेपर प्रेशर आपका जहां पे डेवलप होगा, और
वेपर प्रेशर डेवलप होगा तो वहां पे कैविटेशंस होंगी, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि हाइट ऑफ द समिट एंड द लेंथ ऑफ द इनलेट लिम के ऊपर जो हमारा है वर्किंग ऑफ द साइफन दैट डिपेंड्स, यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज अबाउट द साइफन। ये साइफन के बारे में था कि साइफन क्या है, वाई वी विल यूज द साइफन इन फ्लो थ्रू द पाइप, टॉपिक के ऊपर क्यों डिस्कस किया, बिकॉज व्हेन दैट we have to carry the water from the higher elevation of the reservoir to the lower elevation of the reservoir, and these two reservoirs you can say that they are being separated. उनके बीच में कोई हिल है या रिज है, कोई हाई ग्राउंड है अर्थ का, तो उस केस में हम we cannot use the horizontal pipe like this. So in that case we will use the siphon, and siphon is what? Siphon is a long bent tube, you understand। और उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या है कि प्रेशर इसके जो समिट के ऊपर प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, और जो जहां पे प्रेशर होगा फ्री वाटर टैंक वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर देयर इज द फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट। बट प्रेशर जो समिट के ऊपर होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन, दिस इज अनदर कंक्लूजन, कि प्रेशर एनीवेयर इन द बेंट पाइप or you can say on the summit, that should be less than vapor pressure. If it is more than vapor pressure, then what happens? As I told you so many times, there will be the formation of the cavitation. You understand? This is the working procedure, nothing else. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो हाइट हम लेते हैं इसका समिट की हाइट, दैट वी टेक फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द टैंक के, जो टैंक आपका हायर एलिवेशंस के ऊपर होगा उसका फ्री सरफेस से जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा बेंट पाइप का, उसको हम मेयर करेंगे तो वो आपका क्या होगा, हाइट ऑफ द समिट होगा। एंड हाइट ऑफ द समिट दैट शुड बी equal to 7.6 meter or less than 7.6 meter. That should not be more than 7.6 meter. You understand? तो अब इसका हम साथ में एक न्यूमेरिकल करते हैं so that you can understand it well. So this is the problem. So एक प्रॉब्लम इसका करते हैं to understand the proper working of the siphon here, किस किस्म का प्रॉब्लम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जाम में आता है, यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द साइफन। देखिए क्या है ये साइफन ऑफ द डायमीटर 200 mm। तो डायमीटर ऑफ द साइफन जहाँ पे दिया है, जब लिख लें यहाँ पे, तो डी आप कह सकते हैं डायमीटर ऑफ द साइफन। तो D so D is the diameter of the siphon. This is given as 200 mm, और आप कह सकते हैं 0.2 meter. Understand? Connects two reservoir having the difference of elevation of 20 meter. तो elevations का difference दिया है कितना इसने, elevation of difference that is 20 meter, तो that is denoted by head, that is head loss कितना है, this is 20 meter. जो difference in elevation that is denoted by h, that is the head loss, and this is मैं सीधा लिखूंगा 20 meter. The length of the siphon is 500 meter. तो लेंथ L जो साइफन की लेंथ है मैं, दिस इज 500 मीटर, दिस इज गिवन, एंड द समिट इज एट 3 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑफ द अपर रेजरवायर। जैसे जे आपका हाइट जो है, दिस इज गिवन एज 3 मीटर, राइट। तो आप कह सकते हैं HC,
height of the summit, right? Summit की जो height है from the free surface of the water level of this reservoir A, that is given as 3 meter, right? अब आप ये लिखा ना, this is understand the length of the siphon gas and the summit is at 3 meter above the water level of the upper reservoir. You understand? The length of the pipe from upper reservoir to summit. So upper reservoir to summit, ये लेंथ आपका दिया है L1, that is इनलेट लिम्ब का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ इनलेट लिम्ब. तो इनलेट लिम्ब का लेंथ दिया है, लिख लेते हैं हम L1 से इसे डिनोट कर लेते हैं, एंड दिस इज गिवन एज 100 मीटर. दिस इज यूर गिवन, राइट? ये आपका गिवन है, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है. यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना है? डिस्चार्ज थ्रू द साइफन. डिस्चार्ज थ्रू द साइफन हमें फाइंड आउट करना, मीन्स हमें, और एफ भी दिया है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन. इधर लिख लेते हैं हम एफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज गिवन एज 0.005, right? Coefficient of friction, this is given as 0.005. तो डिस्चार्ज थ्रू द साइफन, आइए एक तो हमें डिस्चार्ज थ्रू द साइफन एंड प्रेशर एट द समिट, हमें ये PSRPC जो प्रेशर होगा समिट का, दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? तो देख लेते हैं कैसे करते हैं. देखिए, तो डिस्चार्ज पहले हमें फाइंड आउट कर लेते हैं हम डिस्चार्ज, दैट इज क्यू, राइट? दिस इज क्यू इज डिस्चार्ज. यू अंडरस्टैंड? तो डिस्चार्ज का क्या फार्मूला होता है? एज यू नो, क्यू इज इक्वल टू A इंटू बी. तो एरिया तो हम निकाल लेंगे बिकॉज द डायमीटर ऑफ द साइफन इज गिवन, डी की वैल्यू दिया है. तो दिस यू कैन से π/4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज 0.2 का होल स्क्वायर इंटू बी, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. बी मीन वेलोसिटी की वैल्यू या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमें अब क्या चाहिए इसमें? ये चीज तो हमारे पास है, वी रिक्वायर दिस वन, वेलोसिटी की वैल्यू, वी रिक्वायर वेलोसिटी हियर. तो इसको हम क्या करेंगे? Just understand, we will apply the Bernoulli's equation on the free surface of the water tank A and on the free surface of the water tank B. Point वाटर टैंक A के ऊपर और वाटर टैंक B के ऊपर हम Bernoulli's equation को लगाएंगे. You understand? तो लिखिए अप्लाई Bernoulli's equation on free surface of water on tank A and on free surface of water, लिख लो पूरा ही, free surface of water on tank B. तो ये आपकी दो सेक्शंस होंगे, मीन्स एक ये सेक्शन आपकी ले ली यहाँ पे टैंक ए के ऊपर ये जो है, एंड दिस इज द सेकंड सेक्शन, क्योंकि हम दो पॉइंट्स के ऊपर Bernoulli's इक्वेशंस को लगाएंगे. तो जहां पे देखिए दैट इज प्रेशर एट, जहां पे मैं ले लेता हूं PA, प्रेशर हेड आया PA/ρg प्लस
बी ए स्क्वायर पॉइंट ए के ऊपर, जहां पे वेलोसिटी में बी ए से डिनोट कर लेता हूं, प्लस जेड ए, दिस इज द डेटम हेड। मीन्स आप ये नेचुरली ये कहां पे होगा, जहां से उसका होगा ये आपका अर्थ के ऊपर होगा, जहां पे खड़ा है। तो जहां से जहां तक जो हाइट होगी ये क्या होगी आपकी, दिस हाइट इज जेड ए, यू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से जो ये हाइट होगी आपकी, जहां से जहां तक ये आपकी हाइट होगी जेड बी, यू अंडरस्टैंड, जेड ए you understand. So this is equal to PB by rho g plus BB square by 2g plus ZB. You understand? Right? प्लस हेड लॉसेस, माइनर लॉस को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, मेजर लॉस ले लेंगे हम, राइट, प्लस हेड लॉसेस, यू अंडरस्टैंड। बट आई हैव डन, आई हैव जस्ट अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन एट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर एट टैंक ए एंड फ्री सरफेस ऑफ द वाटर एट टैंक बी। मैंने ये दो पॉइंट्स लिए, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक ए, टैंक बी, और उसके ऊपर मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया। Let I said that the pressure at point A, free surface of the water of our tank A, that is PA, velocity is VA, and this is the datum head or potential head, that is ZA. That is the distance from the ground level. This I have taken the reference line इसके लिए and उसके लिए reference line बोले लिए. You understand? तो this is what. अब देखिए PA क्या होगा, PA आपको पता है प्रेशर एट फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज जीरो। प्रेशर जहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, आई अज्यूम इट एज इक्वल टू जीरो। लाइकवाइज BA, दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज टेकन एज जीरो, राइट, क्योंकि वेलोसिटी तो जहां पे होगी, जहां से पानी फ्लो करेगा, तो अगर ऊपर आप देखेंगे सतह के ऊपर तो पानी आपको स्टिल दिखाई देगा, तो वेलोसिटी एट on the free surface of the water that is 0 plus ZA, ऐसे ही रहने दें। इसी तरीके से जो PB है वो भी 0 होगा, BB भी आपका 0 होगा और ZB 0, राइट। तो इसी ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 0 plus 0 plus ZA, this is equal to 0 plus 0 plus ZV plus HF. You understand? Or you can say ZA minus ZB, this is equal to HF. तो HF को भी बात दीजिए आप, क्या आएगा जब 4FL B स्क्वायर, फ्रिक्शन लॉस, हेड लॉस क्या होगा ये 4FL B स्क्वायर अपॉन 2GD. You understand? ZA minus ZB, this is 20 मीटर हेड जो दिया है, डिफरेंस इन द एलिवेशन कितना है 20 मीटर, तो ZA माइनस ZB की जगह हम क्या भरेंगे 20 मीटर, और यू कैन से 20, दिस इज इक्वल टू 4, F आपका है 0.005, यस, लेंथ आपका दिया है 500 इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी क्या है 9.81, और साइफन का डायमीटर कितना है, दिस इज 0.2, यू अंडरस्टैंड। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इधर लिखिए आप, तो जहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आया, द वैल्यू ऑफ बी इज 2.81
0.80. So we will get the value of G from here. तो कैलकुलेट कर ले और B की वैल्यू जो मैं जहां पे लिख रहा हूं चेक कर लीजिएगा. So B we will get 2.80 meter per second. You understand this? That how we have calculated the value of B. So B आपका आ गया यहाँ पे. B is equal to 2.80 meter per second, right? अब डिस्चार्ज यहाँ पे निकाल लीजिए आप. Therefore Q is equal to pi/4 एरिया इंटू बी होता ना 0.2 का होल स्क्वायर एंड बी कितना है 2.80. और इसको सॉल्व करके बताइए हाउ मच यू हैव गॉट इट. सो दिस इज इक्वल टू 87.9 liter per second, 0.879 meter per second. This is a 0.879 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो लीटर में निकालना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट. तो ये आपका आ गया डिस्चार्ज. यू अंडरस्टैंड. अब सेकंड पार्ट था वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर एट द समिट. हमें समिट के ऊपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है. यू अंडरस्टैंड. Second is pressure at summit, means पॉइंट सी के ऊपर. यू अंडरस्टैंड. तो जहां पर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाइएगा, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक एंड दिस वन. इसके ऊपर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए, राइट. अप्लाई बर्नौली equation on the free surface of water on tank A and at summit. दैट इज सी के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन लगा दीजिए. दैट इज पी ए बाई रो जी प्लस बी ए स्क्वायर बाई 2g, राइट. हम इसमें रेफरेंस लाइन लेंगे, ये याद रखिएगा. रेफरेंस लाइन वी विल टेक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, राइट. तो रेफरेंस लाइन हम कहां से लेंगे, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर ऑन द टैंक ए. तो प्लस जेड ए, तो जेड ए इसमें जीरो होगा क्योंकि रेफरेंस लाइन वी आर टेकिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. दिस इज इक्वल टू एंड अनदर पॉइंट इज पॉइंट सी, सो इट बिकम्स एट पी सी बाई रो जी प्लस बी सी स्क्वायर by 2g plus ZC HF. You understand? Last, right? This is बर्नौलीज इक्वेशन से लगाइए. क्या आएगा बर्नौलीज इक्वेशन में यहां पे, जस्ट सी. तो जे आपका पी ए बाई रो जी, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो
and ZA, because we are taking the reference line on the free surface of the water tank, on the free surface of the water on the tank A, तो J भी आपका 0 आएगा, ZA का आपका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम जहाँ पे डेटम लाइन रेफरेंस लाइन को ज्यूम कर रहे हैं, डेटम लाइन हम ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेंगे ऑन टैंक के। सो दिस इज इक्वल टू PC, ये तो हमें निकालना है, रो जी प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, दैट इज द वेलोसिटी जो हमने अभी भी निकाला था, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, जो वेलोसिटी जहां पे होगी वही वेलोसिटी जहां पे होगी, तो BC मींस V स्क्वायर, तो ये था 2.84 आई थिंक, देख लो जो भी है, अपॉन 2 इंटू 91, राइट, प्लस व्हाट इज योर ZC, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द रेफरेंस लाइन, और ZC क्या आएगा, ये डिस्टेंस, ZC मींस जो HC होगा वही ZC होगा, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज +3 एंड प्लस HF कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए हमने फ्रिक्शन लॉस निकालना है, तो इसके लिए आएगा 4F, तो वही आएगा 0.005। अब इसमें लेंथ क्या लेंगे हम, क्या हम लेंथ जो है ये 500 मीटर लेंगे या 100 मीटर लेंगे, हम लेंथ ये लेंगे, बिकॉज हम अप्लाई कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन जहां पे, तो इस पोर्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जहां से जहां तक, तो जहां से जहां तक जो लेंथ है L1, दिस इज 100, दैट इज गिवन, तो L1 इसमें क्या आएगा 4F, फार्मूला क्या होता है, वही होता है ना 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, यही है आपका HF है, 4F ये आ गया, L1 ये आएगा 100, और B स्क्वायर भी आपने निकाला है 2.84 और 2.8 जो भी है, 0 है या 4 है देख लीजिएगा, दिस इज 2GD, 2 इंटू 9.81 इंटू D कहता है 0.2, यू अंडरस्टैंड। तो इन सभी को सॉल्व करके आपको PC, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आया, तो ये आपका आ गया 0 प्लस PCY 0 इज इक्वल टू PC बाय रो जी, प्लस इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए मुझे, सो दिस इज 0.399, this one 0.399, ये +3 आ गया यहां पे, इसको सॉल्व करने के बाद आया 4, चेक कर लीजिएगा, दिस इज 4, राइट, देयरफॉर PC बाय रो जी ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू PC बाय रो जी, कर लीजिए, निकाल लीजिए, ये दिस इज हाउ मच, 7.399, दिस इज 7.3, इन माइनस में आएगा 7.399 मीटर, यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड, ये आपका आ गया -7.399, दैट इज द वैक्यूम प्रेशर। अगर उस हिसाब से देखेंगे 10.3 माइनस 2.7 करते हैं हम, तो वो कितना आता है हमारा 7.6, और जहां पे देखिएगा ये 7.6 से इसका वैल्यू क्या हुआ, कम आया है, जो इसका हाइट था 7.6 से कम आया, दिस इज अ PC पान रो जी, दिस इज इक्वल टू -7.399 मीटर, और दिस इज द प्रेशर एट द highest point at the summit, you understand।
आप वाटर भी लिख लो। तो ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपने देखा कि जहां पे आपको बर्नौलीज इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर। जहां पर भी आपने जो चीज़ निकाली है उस पॉइंट को लो एंड फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक ले लो कहीं भी। पॉइंट ए के ऊपर हमने लिया था क्योंकि समिट की हाइट हम जो है दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द free surface of the water on the higher elevation of the tank, and that is the tank A. So this is the question and this is the topic, very important topic, summit. I think you have understood it well. तो ये numericals भी इसके साथ दे दिया है so that there should be no confusion. So you must understand all the things quite clearly. Okay, so this is what I taught today, and next lecture in the coming days I will take on this topic only. We will discuss about the flow of the water when the pipes are in series, when the pipes are in parallel, what is the compound pipe, what are the equivalent pipe. तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक देंगे कि सीरीज में जब पानी फ्लो करता है तो उस वक्त हमारा सीरीज किसको कहते हैं, when the end-to-end pipes are connected in series, whether they are having the same diameter, whether they are having the different diameter, that we will discuss in the next lecture. You understand? So this is all about today. So thank you very much.